ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਲੇ ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਗਲੀਸ 'ਚ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹਾਊਸ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੇਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਮਰਾਸੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਘਾਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਈ ਆ, ਮਰੀਖ ਤੇ ਜਾਣ ਡਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੱਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਹੈਗਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ, ਉਹਦੀ ਪਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਗੜੀ ਬੰਨਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਧਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੈਠਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਵਾਇਰਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਐ ਕਾਹਤੇ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਆਰਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਈ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਆਰਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਚੈਟ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਂਗ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਆਂਗ ਜੀ ਫਾਦ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ। ਫਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ। फहद भाई मैं वो स्ट्रीम देख रहा था, वहां पे एक वसीम है, उसके साथ आपका क्या चक्कर है? फहद भाई चले गए? वो इधर मतलब गए होंगे वॉशरूम वॉशरूम में, पानी पूरी पीने गए होंगे, अभी आ जाएंगे। अच्छा कौन सी स्ट्रीम की बात कर रहे हो? पता नहीं, वो मदूद की स्ट्रीम थी तो उसमें ये उसे कह रहे थे कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इस तरह की बातें कुछ उससे कर रहे थे। तू मेरा नहीं, ये फहद भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वसीम को कह रहे थे कि तू मेरा मशूक बन जा, कोई इस तरह की प्यार मोहब्बत की बातें उससे कर रहे थे चैट में। पता गल पता ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਨਕਲੀ ਆਈਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ। ਲੋਕੀ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬੈਠੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਈਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ कौन सी शान भाई? माशुक वाली? हाँ हाँ क्या
पहले की है अभी की है? मैं पहले किया। हाँ तफरिया मजाक चलते ही रहते हैं अच्छा अच्छा, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, वो तो सब स्ट्रीम का वो मार्ड है, 3-4 स्ट्रीम का। अच्छा हम्म। हाँ तफरिया करो, मजे करो बस, और क्या करेंगे। लेकिन मैंने देखा आपसे भाग रहा था वो, जान छुड़ा रहा था। आपने सही उसको दबोचा गर्दन से। ऐसे ही करते हैं फिर। हम्म। जहाँ आप भड़क जाओगे ना, वहां आप कमजोर हो जाओगे। हम्म। दिल पे लोगे, वही चीज आप पे हावी हो जाएगी। सही। ये दुनिया का फंडा है भाई। आप दिल पे लोगे, वो आपके गले में आ जाएगी चीज। हम्म। और यही फाज भाई मसला है बारिशें, स्ट्रीमों का। फाज भाई बारिशें कुछ कम हुई हैं कराची में? नहीं, यहाँ से 1 हफ्ते से नहीं हो रही बारिश। अच्छा, हम्म। तो फ्लड फ्लूड का कुछ ठीक हुआ है? तो सिंध में है, सिंध में है, KPK में है, हम्म। बलूचिस्तान में। अच्छा। जो विलेज है ना, ट्राइब जी एरिया, जी वहां जी पे है जी। ये मसले। हाँ, हम्म। सूरत हाल बहुत खराब है। हम्म। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने खुद ही बांध तोड़ दिए हैं। नहीं नहीं, बारिश वारिश से हुआ है। हमारी यहाँ तो यहाँ घूमती है ना साजिश है। हम्म। कुछ भी हो जाए तो बस साजिश है। हाँ ये भी है। वहां से अगर कबूतर पकड़ा जाए, वहां साजिश है। बस हाँ साजिश हो, चलते रहते हैं ये सिलसिले। भाई कुदरत की आफत है ये, उससे क्या ताल्लुक है। इतना आसान जी। थोड़ी होता है। अब बलूचिस्तान का सिस्टम क्या है? बलूचिस्तान का सिस्टम में कौन सा डैम है वहां से टूटेगा? हाँ वही तो मैं सोच रहा था, वहां कौन से डैम है? हम्म। वहां तो कोई रिवर ही नहीं है मेरा ख्याल है। वहाँ तो रेगिस्तानी इलाका है पूरा वो। हाँ, या पहाड़ है या रेगिस्तान है। रेगिस्तान है। कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि उल्टे काम बहुत होते हैं वहाँ पे। हम्म। तो कुदरत का अजाब आ जाता है फिर ऐसे लोगों पे। तो ये है सिलसिला सा। आप इसको रोक थोड़ी सकते हैं। अब मिसाल है, कुछ पाकिस्तान के सियासतदान कह रहे थे कि भाई हम गुलामी नहीं करेंगे हम्म। अमेरिका की। अब कुदरत ने आपको उनके सामने मजबूर कर दिया इमदाद के लिए दुनिया भर से। हाँ, ऐसा ही है ना, UN से आप कह रहे हो, UN अमेरिका में है, कोई बाहर थोड़ी है अमेरिका से। यूएन अमेरिका ही है ना। हाँ वही है ना, एक ही है पूरा। तो वही देता है फंड वगैरह, वही उसका देता है, हेडक्वार्टर भी अमेरिका न्यूयॉर्क देता है में है। सब। अमेरिका चला रहा है UN को पूरा। तो हाँ कहने का मकसद ये है कि 2 महीने पहले आप कह रहे थे कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे, लेकिन कुदरत ने आपको वहां पे ला खड़ा किया। सही बात। तो ये है, ये चीजें सोचने वाली हैं। हम्म, हम समझ जाए ना ये चीजें तो अच्छा है। अब फसलें तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। तो क्या कहते हैं इसको, टमाटर प्याज महंगा हो गया, 250-250 किलो, 300-300। क्या करेगा इंसान? जी ईशान भाई, जी जी, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। मैं यही कह रहा था आपसे। आपके पंजाब में भी तो हमें फसलें हैं ना काफी? पंजाब तो है ही फसलें, और क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर ही नहीं तो नहीं, है यही वहाँ पे हाँ जी। टमाटर की, प्याज की किधर है हाँ फसलें वो तो, ज्यादा? हाँ जी। लेकिन ज्यादा किसान जो है वो नहीं ये उगाते, वो चावल, हम्म। अपना गंदम, आलू वगैरह बना। ये लोग जो, जिनके पास थोड़ी थोड़ी होती है ना जमीन, कोई
वो कारोबारी जो लोग हैं वो लगा लेते हैं, टमाटर, धनिया, मिर्चें वगैरह इस तरह लगा लेते हैं। लेकिन अगर 1 एकड़ में भी लगा ले ना टमाटर, तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काफी होते हैं। लेकिन लगाते नहीं है लोग वहां पे, बहुत कम इस तरफ उनका रुझान है। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਨਿਕਲਦਾ? मैं तो कदे लाया ही नहीं, मैंने तो पता ही नहीं। मैं उंज कहना कि काफी निकल आंदा, लेकिन ਕਾਫੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਬੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਾਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਣਕ ਜੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਲ ਲਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਲੂ, ਬਸ ਆਲੂ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ 5 ਏਕੜ ਦਾ, 10 ਏਕੜ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਬਹੁਤ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2-3 ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਲਈ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੱਗੀ ਜਾਣ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਪੁਰ ਭਾਜੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਤੇ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ? 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਨਿਪਨ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਚੋਰੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਣਗੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ, ਸੁੰਡੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਾਹ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮੰਡੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਬਣ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ ਮੱਛੀ, ਪਰ ਜੇ ਫਾਰਮਸ ਬਣ ਜਾਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੱਛੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੱਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾੜਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਮ ਭਾਈ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਏਕੜ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਮਾਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ। ਅਮਰ ਭਾਈਜਾਨ, 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਨਿਕਲਦਾ ਟਮਾਟਰ? ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਵਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ 300-400 ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਟਨ ਦੱਸੋ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ 40 ਕਿਲੋ, ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ 40 ਕਿਲੋ, 25 ਕਿਲੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8-10 ਟਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। 8-10 ਟਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀ ਆਇਆ ਨਾ,
ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨਾਲੋਂ 22 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਲੱਥਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ, ਟਰਨਲ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਸਿੰਧ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਪਿਛਲਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਧ ਵੱਲੋਂ। कराची ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਲੱਗੇ। ਅਮਰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ? ਪਿਆਜ਼ ਸਿੰਧ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਿੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿੰਧ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੁੜ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਆਏਗੀ ਹੁਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਜ਼, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਸਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਲਾਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਜ਼? ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਿਆਜ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਜ਼, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ दद्दू की फोटो लगाओ जी ऊपर स्क्रीन पे। दद्दू ਜਿਹੜੇ दद्दू की फोटो लगाओ। दद्दू ये हमारे लक्कड़हारा जी के दद्दू हैं। ਨੁਪੁਰ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਵੁੱਡਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। लकड़हारा जी। लक्कड़हारा कुछ बोलो जी। दावत करते हैं हजूर आपके गुंचाए फरोजा में। तो हमको सुनकर बड़ा दुख हुआ कि आपके 1 एकड़ में इतने कम टमाटर उगते हैं। अभी हम आपको एक बात बताते हैं, ये जो सारी पट्टी है ना स्कैंडिनेविया की, इसमें आपके बाल्टिक भी आ जाते हैं, नॉर्डिक भी आ जाते हैं। ये किचन गार्डनिंग करते हैं और अपने जो ग्रीन हाउसेस हैं उसमें वो आधे मरले का ग्रीन हाउस होता है। 60 किलो टमाटर तो उससे निकलते हैं सालाना। पता नहीं किस एकड़ की बात यार तुमने कर दी, हमको तो बड़ा दुख आ गया। गर्मी में वो गार्डनिंग होती है और वो जो ग्रीन हाउस होता है और इस तरीके से लगाए जाते हैं कि 60-65 किलो आपके टमाटर निकलते हैं। और आलू की बात तुमने कर दी, तो उसमें भी अगर 1 मरले की क्यारी है तो उसमें भी आपके 1 मन तो उससे निकल जाते हैं। तो अच्छा चलो ऐसी कर लें, ये मेरी बात सुने, ऐसी कर लें 1 मरले में 1 मन, ठीक है ना। 1 एकड़ में कितने निकले? 160 मन। आपने तो बहुत कम एवरेज बताई है। नहीं, वो तो हम बात कर रहे हैं ना, हम गर्म हाउस की, जिसमें मैं नहीं, पंजाब की मिट्टी तो जरखेज है ना, उसमें तो 4 सीजन होते हैं। हमारे इधर तो 6-7 महीने तो बर्फ रहती है जमीन पे। गार्डनिंग होती है सिर्फ मई से लेकर अगस्त तक। वुडमैन जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने 1 मरले में 1 तो मन ज्यादा का, देना चाहिए, इससे भी ज्यादा देना हाँ चाहिए। तो इससे भी ज्यादा है, मैंने कब कहा है? हमारे 120 बोरी निकलती है, तकरीबन 1 बोरी में 3 मन आलू होते हैं। तो फिर भी हमने सुना कि ये इमरान खान लेने चला गया रशिया से गंदम, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? वो मैं बताता हूँ आपको। वो सारी जो गंदम होती है ना, वो अफगानिस्तान में स्मगल हो जाती है। अफगानिस्तान में तो कुछ नहीं होता ना, तो वो सारी जो गंदम है वो वहां पे इलीगल स्मगल हो जाती है। तो फिर इनके जो होता है ना स्टोरेज, वो भी उधर भेज देते हैं, तो फिर बाद में इधर से शॉर्टेज हो जाती है। तो आरपीजी तुम इंडिया से क्यों नहीं भेजते यार उधर गंदम? अब तो जरूरत है।
मोदी जी को सिफारिश कर देना। मोदी मेरा रिश्तेदार नहीं, पंडित जी का रिश्तेदार है। पंडित जी ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। पंडित जी तो अरे लंगोटिया वो यार है। इधर आज तो ऊंचा वो फिरोजा पे पंडित नजर जी नहीं आए हमको। वो पंडित जी ने एक बार बोला था मलेश को कि मैं मोदी को तुम्हारे सामने बिठा दूंगा और मोदी को बोलूंगा ये मेरी जान है। और मैंने कहा था पंडित जी उसको सामने बिठा के उसकी गांड मारनी है हमने मोदी की। तो ये पंडित जी को बोलो, ये पंडित जी का काम है। तो शान जी आप भी करते हैं किचन गार्डनिंग? जी नहीं नहीं, मैं सुस्ती है बहुत ज्यादा। मैं करता हूँ। पहले करते थे, मेरा बड़ा घर था तो वहां पे पीछे लगाए हुए थे हरी मिर्चें, टमाटर, भिंडियां वगैरह लगाए हुए थे, कद्दू। लेकिन अब वो बड़ा घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है बुढ़े बंदे के लिए। हाँ ये तो तो बात है। हाँ, तो मैं बच्चे करता हूँ बड़े हो गए हैं। मैंने अच्छा लगा गिल रखी है साहब, मिर्चे मिर्चे नींबू ये सब कुछ। नींबू भी ठीक हो जाते हैं, मिर्चें भी ठीक हो जाती हैं। एक आधी अरे हमने तो सीजनल कभी वेजिटेबल नींबू लगा लेते हैं। देखे ही नहीं उधर। अच्छा गिल और ਸਾਹਿਬ अमेरिका से ਮੈਂ ਨਾ आते हैं। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, जी ਇਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਨਿਪੁੰਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਦ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਇਹ हाँ ਸਾਡੇ जी ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ। अच्छा। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ हाँ ਦੇਖੋ। हाँ हाँ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ अच्छा ਬੜੇ अच्छा, आज ਸੋਹਣੇ। आपकी बारी है। चलें ठीक है, आज आज आरती आप जी बारी है। आज आपकी बारी है, आज आपकी लेनी है। ਉਹ ये ਮੈਨੂੰ ਆਰਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨੱਕ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਦਿਖਣ ये ਡਿਆ। ਉਹ यही ਰਹਿਣ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ ਮੂੰਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੰਮਣ ਤੇ ਆਏ। यही यही फोटो देख के तो डॉक्टर मदूद कहता है कि वो हैंडसम है, हाँ। इसके अरे कंपेयर करता है। वो डॉक्टर मदूद ने तो हमको ब्लॉक कर रखा है, वो लेता ही नहीं। हम जब नहीं भी वो जाते हैं उसको नसीहत करते हैं, यार छोड़ो ये मालीज का लोचा, कोई और काम करो। काम ਉਹ कुम ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ करता ਬਲੌਕ नहीं। ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। हाँ, असल में उसमें उसे कोई 2-3 लाख डॉलर का उसका चल रहा है कि मिल जाएगा वहां से। लेकिन वो इतनी बच्ची थोड़ी है कि वो सब कुछ बेच के वहां जंगल में इसके पास आ जाएगी। जैसे हर वक्त तो सांप और चूहे इसके घर में घूम रहे होते हैं, तो ਵਾਹ वो ਜੀ क्या। ਵਾਹ, हाँ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਗਿੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮਤ ਦੀ हाँ ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਹ। हाँ, उम्मत केड़ी उम्मत च हक बंदे किन्ने ने? कोई भी नहीं, 2 या 4 बंदे होंगे। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 12-14 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਜਾ ਜਾਵਾਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ। ओ, जैसे बच्चों को कैंडी नहीं देते, ऐसे वो उसे लालच देता है कि वो स्विमिंग पूल है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे बैठने के लिए जगह है, तुम इधर लैपटॉप भी यूज कर सकती हो। जैसे वो मान ही जाएगी। जब ये मैं बात सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है वुडमैन जी के उसका दिमागी तवाज़ुन कुछ इस एक तरफ जिधर चल जाता है ना, चल ही जाता है बस। जिशान जी देखिए उसका दिमागी तवाज़ुन हो तो दिमागी तवाज़ुन उसका सही हो, उसका दिमाग ही पता नहीं कहाँ भटकता रहता है। तो क्या क्या किया जा सकता है उसका, तो क्या बोले। वुडमैन जी, उसका दिमाग होगा तो तवाज़ुन होगा ना। जब हाँ दिमाग ही ये कोई बात दुरुस्त है। जब दिमाग ही कोई नहीं तो तवाज़ुन कैसा। हाँ, वो अभी मेरा ख्याल है ये पूरा महीना वो उस पे स्ट्रीम कर रहा है, उसे क्या क्या लालच दे रहा है, तुम पता नहीं दुनिया की ये हो वो हो। हालां मेरा ख्याल है कि दुनिया सारी में इस 500 बंदा भी नहीं जानता होगा इसे।
या 1000 बंदा जानते होंगे या 5000 भी जानते हों, वो भी ਉਹ सिर्फ ਗਿੱਲ जानते ਸਾਹਿਬ हैं, मानते नहीं ਨਾਲੇ है। ਨਾਲੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ वो ही ਕਰਦੇ ना, ਕੀ वो भी मानते नहीं है, वो बस जानते ही हैं। तो ये उसे कह रहा तुम उम्मत की माँ बन हो, इतना बड़ा तुम्हारे पास टाइटल है, तुम ये क्यों छोड़ के बेइज्जती वाली जिंदगी, इस तरह पता नहीं क्या क्या उसे सुनाता रहता है, जैसे वो मान ही लेगी इसकी सारी बातें। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਵੁਡਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਮਦੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ हाँ पता है अरे मुझे। अरे बहुत हम तो बहुत उनको इंटरटेन उनसे होते हैं तो वो इंटरटेनिंग की तरह, बट ठीक है। तो भी बाकी फिर तो आप आपका प्यार जानते हैं, तो है उसको कुछ सीरियस तो नहीं लेता, जो भी मुझे वो कहता है। वुडमैन साहब मुझे खुद उन्होंने बताया कि बहुत प्यार है आप दोनों का आपस भाइयों का आप दोनों भाइयों का आपस में बहुत प्यार है उसने मुझे बताया था सही सही, जैसे आपकी दिल लगी आपको खुश करे आरपी जी। वुडमैन जी, कभी आपने भी डोनेशन भेजी है? बहुत ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ हाँ। नहीं नहीं हजूर, ये तो ऐसी है कि सुपर चैटें तो हम बहुतों को देते हैं, लेकिन ये अपनी सुपर चैट ऑन तो करें ना, ये इनको भी देंगे, तो वो सुपर चैट तो ऑन करते नहीं। कोई ये मसला तो होगा आप उसमें, ऐसे नहीं है, कोई कुछ प्रॉब्लम होगी सुपर चैट। ਯਾਰ नहीं, वो ਤੁਸੀਂ ऐसे है। ਪੇਪਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਨੀयत ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਪੇਪਾल कर दो अरे उसको हम सीरियस नहीं ना लेते, हम उसको कैसे कोई काम की बात तो दिल को लगती है नहीं क्यों। हर वक्त वो क्या है, वो जिनसी बातें ही बस करता रहता है और भीख मांगता रहता है। ऐसे 7 साल से रुका हुआ है तो बंदा फ्रस्ट्रेटेड तो हो जाता है। शान जी, क्या आप उसके झूठों पे, उसके झूठ पे यकीन करते हैं? 7 साल से उसने, नहीं, हम वो तो रुका, नहीं। मतलब है रुका हुआ हाथ से, वो जो आप कहते हैं मुश्तजनी तो करता ही होगा, लेकिन उसके पास है कुछ नहीं वैसे। ਪਰ भाई ਯਾਰ उसके, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੇ ਜਨਾਨੀ हाँ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ भाई, जिस लेकिन बाप को या जी 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 बोलिए। जी बोलिए बोलिए हजूर, देखिए जिस वो बाप को, हाँ जी, जिस बाप को ये पता चल जाए कि इस बंदे ने पहले 10 शादियां की हुई हैं एक खुसरे से और उसके 14 बच्चे हैं, वो कैसे अपनी बेटी को इधर, वो तो मार दे, उससे तो अच्छा है उसको मार दे। यार वैसे अजीब आदमी है वो, आरपी साहब लगा लें कि वो एक पार्टनर ने ही इनके कान पकड़वाए होते हैं और उनकी 10-10। शान जी जरा गौर कीजिए। जी। हम तो परेशान हो जाते हैं कि ये, और फिर सारी मर गई और कहता है वो हाँ मर गई। हाँ हाँ और आरपी आपको जी, आपको क्या लगता है वो दुख से मरी है खुशी से मरी है सारी हाँ। वो खुशी से इन्हें, कैसे मरेगी यार, वुडमैन समझ साहब नहीं हम सीरियसली पाए। खुशी से मरी है सारी वो इन्होंने कहा कि तुम जन्नत में, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, तो वो मर गई बस। खुशी से मर गई सारी हम पहले भी आना चाह रहे थे, आपने वो जिक्र फरमाया था फोन का, तो कुछ समझ हाँ जी। नहीं पाए, लेकिन ये पता चला कि बहुत ही महंगे फोन हैं। तो उसके बाद आपकी स्ट्रीम रुक गई, शायद हम आने की कोशिश किया लेकिन आ नहीं पाए। जी, वो मैं कह रहा था वुडमैन जी कि पहले मैंने गैलेक्सी फोल्ड लिया था परसों, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था मेरे लिए, तो मैं, वो मेरा छोटे बेटे ने मुझे लेके दिया, तो मैं वो एक दिन मैंने रखा, तो मैं सेटिंग शूटिंग की कर रहा था, लेकिन वो बहुत मेरे लिए ना कॉम्प्लिकेटेड था। वो क्या है कि वो फोल्ड हो जाता है और जब वो खोलते हैं ना तो स्क्रीन डबल हो जाती है, मतलब अगर आपने यूट्यूब देख रहे हो या कुछ, तो वो डबल हो जाती है स्क्रीन, लेकिन मुझे वो बहुत मेरी समझ से बाहर था। तो फिर मैं कल जाके वापस करके, तो मैं ये गैलेक्सी का S22 आया है प्रीमियर, वो लेके आया हूँ। तो ये थोड़ा सिंपल है, ये बात कर रहे थे। अच्छा 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 अच्छा।
जी, वो जो फोर्ड था वो 1800 का है और ये मेरा ख्याल है $1500 का है, यूएस का। यार, क्या तो हाल है आप ब्रायन? ब्रायन, क्या हाल चाल है? एकदम सही सिंह साहब, आप सुनाइए। बस बढ़िया बढ़िया। पंडित जी कहाँ है? पंडित जी को कॉल करो, आए यार पंडित जी। पंडित जी कब से? पंडित जी अभी लगता है बिजी है कहीं पे। वही शागी जन वही। हाँ जी हाँ जी, वुडमैन साहब बोलिए बोलिए। वहां पर दूसरों की टीमों में जाकर क्या हम अपना कलाम पेश कर सकते हैं? और आपका कलाम ही नहीं सुनते वो लोग। हम इधर बैठे तरस रहे हैं आपका कलाम सुनने के लिए। वुडमैन साहब, वुडमैन साहब, हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो अमर भाईजान बोलो। वुडमैन साहब, मैं क्या सुनते हैं कि भाई वुडमैन साहब की मुझे एक तस्वीर आप सेंड कर दें। ਉਹ ਵੁੱਡਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹ ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਪਏ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਲਾਣੀ ਜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਐਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੌਂਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਅੱਛਾ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਣਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। कैसे हो निपुण भाई, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ अमर ਦੀ भाई, ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਹੀ फहद भाई, बरकतां हैं। शानगिल साहब, निपुण भाई, फहद भाई, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ अमर भाई, ਲੈਂਦੇ आप ਆ, लोग कैसे हो? ਘਰ ਘਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫੀਸ ਵੀ ਜੀ ਲਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ठीक ਨਹੀਂ था। ਸੌਂਦੇ ਆ तस्वीर दिखा दो। बढ़िया बढ़िया ब्रायन, आप सुनाओ कैसे हो? आज आप फोन कर रहे थे, मैं जरा बिजी था उस टाइम ना, बात नहीं कर सका। आज थोड़ा शेड्यूल टाइट था मेरा। हेलो। ਨਿਪਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ हाँ ਜਾਣਗੇ। बोलो बोलो भाई, क्या? ਉਹ ਗਿਟਾਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਪੰਡਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਟਾਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਘੱਲੋ ਕੋਈ ਲਿੰਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਭੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। आवाज नहीं आ रही किसी ਠੀਕ की? ਹੈ। खैर, ਉਹ ਦੀਪਕ अब आ रही है ਜੀ, आवाज? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ, अब आ रही है, अब आ रही है। और सुनाओ बोलो जी, क्या? बोलो दीपक जी। बस बढ़िया बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? ये लोगों ने है ना, ये मरदुद जैसे जाहिलों ने ये साले जन्नत और दोजख के चक्कर में दुनिया को दोजख बना दिया है। पंडित जी का ज्ञान समझे? शुरू हो गया, लो और ज्ञान दो, दो हमें और ज्ञान। आप खड्डा खोदने में चक्कर पूरा। वो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, मास्क पहनना चाहिए। ਆਰਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? हाँ जी, ਉਹ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। डॉक्टर मधु साहब स्ट्रीम सुनते पे? ਆਹੋ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ कोई नहीं ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਲ सुना। ਸਾਹਿਬ।
डॉक्टर मधुर साहब वर्गा तो हाँ बंदा ही कोई नहीं दुनिया हाँ एडे नहीं जो घैंट टोपी बंदे सर पे, हाँ जो टोपी सर पे पहनता है वो नीचे पहनता ना तो ये हालत ही नहीं होती। और दीपक भाई डॉक्टर मधुर साहब बहुत काबिल इंसान है, बहुत अच्छे ना ना हैं। बहुत काबिल है भाई, इसकी माँ की आंख 24 घंटे में साला इतना हल कौन चलाता है। हाँ इतना तो टर्मिनेटर के वो आर्नोल्ड का भी नहीं चलता था। लेकिन हल उसके पास खेती नहीं है तो हल कहाँ चलाएगा। नहीं नहीं अभी आजकल वो हाथ लारे खींच रहा है ना। अच्छा अच्छा। हाँ बस ये है पद्मावती कि पद्मावती पद्मावती करके। हाँ ਸ਼ਾਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ हाँ ਮਦੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ जी ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ हाँ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਲੈ हाँ। ना ਜਿੱਦਾਂ ना वो बोल ਲੱਕੜਬਾੜੀ ਦੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ कमल भाई वो बोलते हैं ना कि लेने के चक्कर में इतना अंधा हो गया ना कि उसकी खुद की ही मोरी खुल गई। तो इसके लिए वो कहावत नहीं पड़ी, लेने के देने पड़ गए। ये मर्दूद के ऊपर से ही पड़ी थी ये कहावत, लेने वो गई मैं, पूत खोआई खसम, ऐसा हाल है इसका। मेरा ख्याल है वो इसको ही पेल के चला गया वही हाँ मैं दूसरा। वही तो बोलता हूँ ना कि लेने के चक्कर में इसने अपनी मोरी खुलवा ली। लो जी वुडमैन एक्स ने बदल लिया, पिक्चर बदल ली आपने। लक्कड़हारा जी ने अपने जवाब बचपन की फोटो लगा ली अब। ये तो ऐसा लगता है हिटलर की है फोटो। ये इनके जब ये स्टैंडर्ड में थे ना तब की फोटो है इनकी। क्या और भाई जी? तो क्या हुआ था जब ये 12th स्टैंडर्ड में थे ना तो इनकी मूछ जो है ना पहले बड़ी थी, तो एक देवता अच्छा। आया तो बोलता लकड़हारे को ये तुम्हारी मूछें हैं, वो है ना कहानी हम छोटे होते में पढ़ाई जाती स्कूलों में, उस कहानी से कहानी बनाई है मैंने ये। तो वो आया देवता बोलता है ये बड़ी मूछें आपकी हैं, तो ये कहता नहीं है मेरी नहीं है। फिर देवता आया वो कहता ये बीच वाली मूछें आपकी हैं, ये कहते नहीं मेरी नहीं है। फिर वो छोटी मूछें लेके आया तो ये एक देवता ये कहते ये मेरी है, देवता ने इनको छोटी मूछें तब से लगा दी हैं, अब ये छोटी सी हिटलर वाली मूछें लगा के घूमते हैं हमारे वुडमैन जी। वुडमैन जी कुछ फरमाइए, कुछ अपना कलाम कीजिए। और जंगल के आदमी बोल रहे अब नहीं जंगल बोलेंगे मैन तो सही। अभी बिजी। नाम क्या वुडमैन से मतलब हम जंगल का आदमी बनाए या लकड़हारा बोले, अब मुझे ये समझ नहीं आता ये वुडमैन वो जंगल वाला आदमी है या ये लकड़हारा है। ये डॉक्टर मदूद से पूछना पड़ेगा। देखो जी छोटे सारे दोस्तों ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੁਡਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਦੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮਦੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨੇ ਵੁਡਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। अब फोटो चेंज करके आएंगे देखना। तो मदूद की लगा फोटो देना, वो भी तो सुपरस्टार है। वो लकड़हारे ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਖੂਹ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਲਕੜਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈ ਮਾਰਦਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਰੀ ਕੁਹਾੜੀ ਹੈ। ਲਕੜਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਵੁਡਮੈਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਦੂਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਜੈਲਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀਲਟ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੈ। ਪੁਲ ਭਾਜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਉੱਤੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਬੇਟ ਨਾਲੀ ਦਾ ਮਦੂਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਬਲੇਡ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀ ਹੈ।
वैसे ਉਹ ना ਦੀਪਕ ਕਿੱਥੇ ਆ वैसे वुडमैन साहब दी ना गिल साहब बड़ी ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਚਿੱਤੜਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਉਂਗਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ हाँ नहीं मदूद वैसे चालू है इनसे बहुत नहीं नहीं वुडमैन साहब हाँ लेकिन डॉक्टर इनसे जब वुडमैन वहां जाते हैं तो वो मदूद को वक्त डाल देते हैं वुडमैन साहब राइट हैंड ने जी मदूद साहब ਦੇ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ अच्छा ਆ ਗਏ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਜੀਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਪੁੰਜ ਜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਹ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ दीपक जी भी आ गए हैं तो हम आपका कलाम गौर से सुन नहीं पाए तो हुजूर अच्छा फरमाइए क्या बड़े दुख हमारी की बहन गल है यार बजाई जा ਤੁਸੀਂ रही ਕਲਾਮ ਹੀ थी ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ वो ये पंडित जी कह रहे हैं कि वो जिस खुसरे से शादी हुई थी ना उनकी डॉक्टर साहब की वो ਉਹ उल्टा डॉक्टर ਵੁਡਮੈਨ साहब ਸਾਹਿਬ ਹੀ को ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੁਡਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੀ ਉਹ अच्छा अरे हमको बड़ा अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा क्या बात। आज तो आपकी हमारे बारी है फ्रांसीसी जुबान में हम आगे आपको रोज कुछ बताते हैं आगे हमारे रोज हमेशा फ्रांसीसी मेरी होती जुबान है में आज आपकी बारी है चलो ठीक है जी हाँ चलो जी ठीक बताइए फ्रांसीसी जुबान में तो ये क्या बोले इसको इसके अक्षर क्या हैं जो जिसको बोलते हैं गे तो हम यही कहने वाले थे आरपी तो बहुत गे हैं आज तो अंग्रेजी जुबान में गे होता है GAY दैट इज गे लेकिन हम फ्रांसीसी जुबान में भी कहते हैं इलेत्खा गे नुसमत्खा गे का मतलब GAI उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है अंग्रेजी वाली है लेकिन हम उसको कहते हैं गे का मतलब होता है हैप्पी शादमानी से मसरत से तो हमको अच्छा लगता है जब भी हम आते हैं एटलीस्ट आरपी सिंह तो गे हो जाते हैं ना अभी ये समझे किस गे की हमने बात फरमाई है पर वुडमैन साहब आपके साथ वैसे धक्का तो आपने नहीं किया होगा मुझे पता है किसके साथ धक्का मदूर कर साहब के दिया साथ मदूर साहब को आप ही एक आखिरली उनकी बीवी थे उसके बाद उसे बीवी नहीं मिली कोई भी ने देखे अभी शान जी भी हैं और इनके लिए भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी ये तो एक देखिए अगर उनका दिल करता है किसी गे के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तो वो आज़ाद हैं हर बच्चा हर बच्ची आज़ाद पैदा हुई थी ये तो हमारी जो हमारे जो क्या बोले सबियत रीबा को हाँ मेहर जो मुआशरा है उसने जो कवानीन है जो ये जेल है मुआशरे को बनाया उसमें तो आप जैसे लोगों ने डाला है ना हर इंसान अच्छा पैदा हुआ है हर व्यक्ति आज़ाद पैदा हुआ है तो अभी आप तुल्ला करते हैं मरदूद के महदूद हम भूल भी जाते हैं ना नाम अक्सर उनका तो महदूद के ऊपर जो आप तुल्ला फरमाते हैं तो देखिए हर इंसान में ये टेंडेंसी होती है कि उसको हर तरफ से लज्जत लेने का और देने का शौक होता है जैसे आरपी जी को है और इसीलिए हमने फरमाया कि अंग्रेजी में गे का क्या अक्षर बन जाएगा
क्या मतलब हो वैसे ना जाएगा। और अभी वैसे अभी भड़केंगे, अभी भड़केंगे, अभी नहीं 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 भड़केंगे। नहीं, मैं आप पे नहीं बात भड़कोगे। कर रहा। आप तो बेचारे हो ना। मैं सोच रहा हूँ कि हम ना एक काम करें। हम दीपक भैया और मधु साहब दोनों की शादी करा दें। दोनों तरसे हुए हैं। हाँ, ये तो बात आपने बराबर बोली। आइए ना बाहुबली जी, ये इनका सुन बाहुबली जी लीजिए। आओ, आपकी शादी पक्की समझो। नहीं, वो तो अमेरिका में रहते हैं, और अमेरिका में भी तो ऐसी अभी लीगलाइज चीजें हो रही हैं, जो गे मैरिजेस हैं, लेस्बियंस हैं। तो इन मुआशरों ने बड़ी मार खाई है। इन मुआशरों ने बड़ी स्टडी की है कि ऐसे मसले क्यों होते हैं। तो अरे गुडमैन हिंदुस्तान जी, तरफ आ जाएगा। इंडिया में भी लीगल है जी। अच्छा, हाँ, हाँ जी, हाँ ये जी, 2 कब साल हो हो गए। गया? 2 साल हो गए जी। आपके मोदी जी ने पहले प्रैक्टिस की थी, बाद में लीगल कर दिया। इंडिया में लीगल अरे है जी। आपका भी एक्चुअल तो में मोदी है, वो हमारा क्या है। ना एक्चुअल में क्या है ना भाई, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी अय्याशियां की है, बराबर है। मैं इनके ज्यादा चूतियों के जैसा 2 टांगों के बीच में घुसा हुआ नहीं रहता हूँ 24 घंटा। ये ये तो भोसड़ी के हवस के जानवर है भेड़ चोद। घर वाली तो संभाल नहीं पाए, बच्चे भेड़ चो गवर्नमेंट पाल रही है। समझे क्या नहीं? चलो मैं आता हूँ 2 मिनट में बैक। अच्छा, यही बताने आए थे। ठीक है। वुडमैन जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? अब पूछो जी, पूछो। जी हजूर, अगर हम देखिए, मुश्किल ना पूछ लीजिएगा, माजर क्योंकि बाज़ माजरत औक़ात साहब, मैं पहले माजरत के आपसे करता हूँ, फिर बात पूछता हूँ नहीं, माज़रत कि देखिए। मेरी जी, बात सुने कि आपकी जो हालत हुई है, ये शादी से पहले थी या मधु साहब ने शादी के बाद कर दी, जो आपने ये तस्वीर लगाई है? वेरी गुड क्वेश्चन। जवाब दीजिए वुडमैन साहब। अरे ये तो बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया। अभी हम आपको भी नहीं नाराज़ करना चाहते, और आरती को भी। जैसे आपका मर्ज़ी, मतलब समझ लें। नहीं, मुझे थोड़ा तफसील बता देना आप। अरे आपको तो मालूम है कि हम इतनी गहराई में जाते नहीं चीज़ों की। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। गहराई में। अच्छा, हमारा एक प्रश्न है, कल भी शायद आप कर रहे थे। खुश कौन-सा इंसान रहता है, पढ़ा लिखा इंसान कि अनपढ़ इंसान? ये आरपी जी आप ज्ञान दे रहे थे शायद। इसके ऊपर कुछ अनपढ़ इंसान फरमाइए। खुश रहता है। जी? अनपढ़ इंसान खुश रह सकता है बड़े आसानी से, इजीली। तो इसीलिए आप खुश नहीं रहते हर रोज़। कभी किसी को गाली, कभी किसी को गाली करते रहते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है अनपढ़ इंसान खुश रह सकता है। पढ़ा लिखा मगर ऐसा इंसान, नहीं। पढ़ा लिखा बड़ा सेंसिटिव होता है ना, वो हर चीज को बड़ा सीरियसली ले लेता है। लेकिन वो ऐसे हैं जिन्होंने एजुकेशन पढ़ी है। अरे वो एजुकेशन में भी एक एजुकेशन है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम्म। तो फिर उन्होंने जॉन लॉक को भी पढ़ा होगा, और उन्होंने फिर बर्नार्ड शॉ को भी पढ़ा होगा। तो बर्नार्ड शॉ कहता है, जो इंसान बर्दाश्त करना सीख जाता है, वही पढ़ा लिखा इंसान है। हम्म। तो इस पढ़े लिखे की आप बात कर रहे हैं। पता समझिए। क्या होता है, हम किसी भी प्रोफेशन में होते हैं ना, तो हम बर्दाश्त ही कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए होता है वो हमें आसानी से मिलता नहीं है, इसलिए बर्दाश्त ही कर रहे होते हैं। पर ये जो दो चार ऐसे गलीज लोग आसपास मिलते हैं ना, वहां पे बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, वो भी दूसरी बात, डिपेंड। अच्छा आपके कहने का मतलब फिर यूँ हुआ कि हम किसी भी प्रोफ़ेशन में होते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी, तनकीद और तख़लीक को तबाह कर रहे होते हैं। ये कहना चाह रहे हैं आप?
नहीं, तबाह तो नहीं मैं कह रहा कि कर रहे अरे होते। किसी भी प्रोफेशन में है तो हम तो रिपीट कर रहे हैं ना चीजों को, हम कुछ नई तो नहीं ना बना रहे, हम हम तो नए रोबोट है बनाने ना। की, हमारे में नए बनाने की कैपेबिलिटी भी तो नहीं है ना। क्या बनाया आपने आज तक, बताइए नया। बहुत उम्दा सवाल है और अक्सर ये सवाल तो हम करते हैं। क्या तो बहुत नया उम्दा, आपने कर रहे हो, आपने क्या बनाया आज कुछ तक भी नया? नहीं, बोझ है हम किताबों इस को इकोनॉमी पे कॉपी, आपकी तरह। किताबों को पढ़ते हो, कॉपी पेस्ट कर लेते हो, कुछ ऐसा किया आपने जो किताबों से हटके कुछ हो? तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये जो 4 स्किल्स हैं, एजुकेशन में भी एजुकेशन वाले 4 स्किल्स, वो बहुत कम नज़र आते हैं लोगों में। तो उसी पे बात करनी चाहिए, जिस तरह है कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। तो कोलैबोरेशन अभी देखिए, अच्छी बात आपने की, हमको अच्छी लगी। अ, अभी ये जो मसला है, हमने सुना थोड़ा-सा कल भी कि पाकिस्तान में बहुत पानी आ गया और फसलें तबाह हो गई। तो अमर जी कुछ गुज़ारिश कीजिए पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री जी हैं कि किसी तरह अभी हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर कर लें। और देखिए मुश्किल जो वक़्त होते हैं, अभी मुश्किल घड़ी है। मुश्किल वक़्त जो होते हैं, वो दूसरों को एक-दूसरे के करीब ले आते हैं। ऐसा होता है वुडमैन साहब, आपने भी बात करीब-करीब ही कही है। जब मुश्किल आती अरे है ना, हम आपके करीब ही सुनिए, सुनिए, कहते हैं, इसीलिए हमने आपको गे बोला, हमने नहीं, नहीं गे के सुनिए, स्पेलिंग भी समझा दिए आपको। नहीं, नहीं वो बात नहीं, फ़र्क नहीं नहीं सुनिए, है मैं कुछ उसमें कुछ। मैं कुछ और बात करने लगा हूँ सीरियसली। अच्छा, सीरियस ही होते हैं अक्सर हम। जब मुश्किल वक़्त होता है तो इंसान को अपने कद से ऊपर उठ के सोचना चाहिए और बेटर सोचना चाहिए। और वो ऐसा है कि जैसे ये सब कॉन्टिनेंट में है, ये इनका कैलिबर नहीं है इतना मेजॉरिटी में। जब प्रॉब्लम्स आती है ना, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स आई क्यों, उसे एनालाइज करना चाहिए और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वो भी एक क्रिएटिव है, वो भी क्रिएटिविटी है। If you are able to solve your problem, that means you are a creative man. क्या ख्याल है? देखिए बात आपकी में बड़ा दम है, जैसे स्टीव जॉब की या मारी क्यूरी, इन्होंने भी कोई चीज़ बनाई नहीं, इसी धरती पे सब कुछ था, इन्होंने डिस्कवर किया था। तो 75 साल हो गए ये एक कॉपी पेस्ट करते हुए लोग, तो अभी इनको इस मुश्किल घड़ी में सोचना चाहिए कि एक दूसरे के करीब आएँ। तो जो बड़े होते हैं उनको छोटों पे शफ़क़त करनी चाहिए। मोदी जी को अभी चाहिए कि कुछ ख़्याल करें इनका भी, वो ये भी उन्हीं से निकले हैं। आगे ज्ञान दीजिए, शान जी आप भी कोई बात कीजिए कि फिर हम भूल जाएँगे बहुत सी बातें। अमर जी आप भी कुछ बताइए। वुडमैन जिनकी साहब आप बात आपने कर बहुत रहे हो वो अपने आप को वो सब कॉन्टिनेंट से नहीं समझते। वो समझते हैं हम मुगलों की जनरेशन से हैं, तुर्कों की हैं। वो अपने आप को समझते नहीं ये सब अरे वो कॉन्टिनेंट्स। क्या तुमने मुग़ल का फिर चर्चा छेड़ डाला, उसको तो नहीं, नहीं, मैंने उसका तो मैं वो क्राइटेरिया बता ही रहा हूँ। बहुत नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। अपने नाम के साथ बहुत ज्यादा लोग, जाट, राजपूत, गुज्जर, वो अपने साथ यही लिखते हैं कि हम इधर के ही हैं। कुछ लोग हैं उसमें से उसकी तो जो एक वजह है ना, क्लैन बेस्ड थिंकिंग है, कबीला बेस्ड थिंकिंग, कि भाई हम कबीलों में रहते हैं, यस, कबीले यस। हैं। तो इस चीज़ों से अभी जो लोग जिनको हम समझते हैं और जो हैं भी हैं, जिनको एडवांस नेशंस कहते हैं, वो तो अभी इन चीज़ों से निकल के आपने एक वीडियो चला डाली आज, एक क्या थी वो, क्या था, जिन निकालने वाला पादरी।
तो हम कहते अक्सर ये मुल्लाओं की बैंड बजाते हैं। हमने कहा कभी ये देखें, कभी पादरियों की करप्शन 17वीं 18वीं 19वीं सदी में, तो ये भूल जाएंगे मुल्लों की बातें। हिस्ट्री ये भी पढ़ के देखें। तो ये तो मसले देखो रहेंगे जब जितना तक। है ना, सुनिए रमन साहब, ट्राइबल पीपल कैन नेवर बी ह्यूमन, दे आर नॉट ह्यूमन, दे कैन नेवर बी ह्यूमन, दे आर लाइक कैटल। तो इसीलिए ये सब कॉन्टिनेंट में ये ट्राइबल थॉट्स ही हैं सबकी। अपना सो कॉल्ड ये जो इनके अपना क्या बोलते हैं लिविंग स्टाइल है, कल्चर है, सब वो ट्राइबलिज्म तो इनके रग रग में बसा हुआ है। तो ना तो ये, इसलिए ये इंसान नहीं बन सकते और ना इंसानों की तरह सो सकते। तो हजूर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो कोई होगा ना। तालीम है इसकी जिसने जिम्मेदार आगे बढ़ने नहीं दिया, या तालीम में वो 4 जो बेसिक स्किल्स हैं वो हैं, उनकी कमी है। वो 4 स्किल्स की कमी तो मैं मान लेता हूँ, पर ये आज के डेट में ये नहीं कह सकते कि इन हम किसी को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। ओ यार, सारा कुछ अवेलेबल है, सब अगर पढ़ना चाहे लिखना चाहे आज आज की डेट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई फॉरबिडनेस नहीं, कुछ भी नहीं है। वो नालायक हैं, यूजलेस लोग हैं। आपको क्या लगता है कि ये अपनी जिस गलीज जातों को इतना उस पे इतना प्राइड लेते हैं, अपनी गलीज जातों पे, ऐसे लोग ऐसे लोगों को पढ़ा के भी आप क्या करें? क्या पढ़ के क्या कर लेंगे बताइए? पढ़ के तो और बेईमान हो जाएंगे ये। तो फिर आपके कहने का मतलब कुछ यूं हुआ कि बंदरों के हाथ में तुमने पकड़ा दिए उस्तरे, यही यस कह रहे हैं? यस यस यस। अरे यार, ये बंदा बहुत हिकमत कुव्वत ताकत से भरा हुआ है। हम तो इनकी कॉमेडी सुन सुन के इतना ही खुश होते हैं कि यार इतनी समझदारी की बातें करता है। सोच सोच के बेचारे ने अपने जिगर का, गुर्दों का, कमर का, मसाने का, पता नहीं किधर किधर से मसला खराब कर बैठा है ये। तो ये वाकया ही मजाक मजाक में आपने बड़ी उम्दा बात कर दी। क्या वजह है कि ये लोग इस जो क्लैन बेस्ड थिंकिंग, क्या बोला आपने, एक टर्म बोली थी क्लैन बेस्ड। मेजोरिटी में ना, सुनिए, मेजोरिटी में हमारा जो देसी है ना, ये बहुत ही थर्ड क्लास सिस्टम है, थर्ड क्लास लोग हैं। जो बेईमान होता है ना, अगर उसे देखो, किताबें आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, इंसान नहीं बना सकती। इंसान आपको खुद ही अपने आप को बनाना होता है। तो अगर इनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो ये और बेईमान हो जाते हैं। जैसे देखो, लेकिन वो आपने क्या इंडिया है ना, छोड़ा, भूखे को क्या, आपने भूखे देखिए, को तो अपना पेट भरना है, भूखे को क्या। आप तो ये बात कर रहे हैं ना तो भूखे कि को अपना भूखे पेट, नंगे को क्या तालीम पता से, क्या होता है? यही सुनिए हम सुनिए, समझे। हर बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव लोग थे, पेट तो उनके भी लगे थे ना, पर उन्होंने सिर्फ रोटी के बारे में नहीं सोचा। रोटी के बारे में अगर इंसान सोचता है ना, सिर्फ रोटी के बारे में, तो वो इंसान नहीं, जानवर ही है। जानवर सिर्फ रोटी के बारे में ही सोच सकता है। और जैसे ये इंसान है, जानवर इनसे बेटर कर लेता है। क्या जानवर में इंटेलिजेंस नहीं होती है? हाँ, जानवर जानवर में विजडम नहीं हो सकती, इंसान में हो सकती है। पर कहाँ है, दिखाइए मुझे। और अरे जिसमें नहीं विजडम नहीं है नहीं तो वो नहीं इंसान कैसे हो नहीं सकता नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर जो घरों में बिल्ली और कुत्ता रखते हैं, बिल्ली भी जानती है कि उसने कमरे में न- अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं करनी। बिल्ली भी अपनी ज़रूरियात वहीं पूरी करती है जहां उसको बचपन से बताया जाता है। और
देखिए, जनाब विजडम को पहले विजडम को समझिए, विजडम होती क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं हमको पता विजडम क्या है, ये तो हम आपसे सीखेंगे। है। अरे आरपी जी, ये वाकया ही हम आपसे। विजडम 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 इसीलिए वाइस उसे कहते हैं ना जो विजनरी हो। बिल्ली विजनरी नहीं हो सकती, हम्म कुत्ते विजनरी नहीं हो सकते। तो फिर आपने वो जॉर्ज ऑवरवेल की किताब नहीं पढ़ी, एनिमल फार्म? नहीं, वो मैंने नहीं पढ़ी। अरे बहुत मजा आएगा आपको। अगर नहीं पढ़ सकते तो सुन लीजिए वो, क्योंकि सुनाइए ऑडियो बुक भी है। हमने सुनाइए। तो अभी तो हम अक्सर किताबें सुनते हैं गाड़ी में, आगे पीछे जाते हैं तो हम्म। सुनने में ऐसे है 30 मिनट में एक चैप्टर खत्म, 40 मिनट में एक चैप्टर खत्म, तो ठीक है टाइम ठीक। जाया नहीं ऐसे होता। ये बहुत शानदार बुक है, आप इसको सुनिए। नेपोलियन की माँ बहन कर दी उन्होंने, ठीक है उसमें। और बहुत मजा आएगा। नेपोलियन नेपोलियन की माँ बहन तो वो डिजर्व भी यही करता। जितने राजा थे ये कोई दूसरे प्लेनेट से तो आए नहीं थे। हाँ ये तो बात दुरुस्त है आपकी। ठीक है ना, कोई और स्पीशी भी नहीं थी। तो ये सारे के सारे जितने भी थे, जो चोर चक्के लुटेरे थे, दे ऑल बिकेम किंग्स। जिसमें लड़ने की थोड़ी हिम्मत थी वो बन गया राजा। है लुटेरे ही थे, चोर ही थे। अब तो इतने ऐसे मिलियंस वैसे लोग, सुनिए हम, सुनिए, जी जी, उस टाइम पे आपको पता है राजा बनना के लिए कितने लोगों को हाँ मारना पड़ता था, ठीक है ना। हम्म, तो इतने मिलियंस लोगों को मार के अगर वो राजा बन रहा है, तो क्या वो आपको क्या लगता है वो इंसान होगा, इंसानों वाले काम करेगा? वो स्टेट तो राजा की प्रॉपर्टी है। अगर अपनी प्रॉपर्टी को वो सेव कर रहा है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बना रहा है, तो कोई बड़ा तीर नहीं मार रहा, क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी है। तो उसे वहां पे करप्शन नहीं चाहिए। उसे वहां पे वो अपना क्या बोलते हैं उसे, अपना ए, कोई न्यूसेंस नहीं चाहिए। उसे वहां पे वो लोग चाहिए जो उसको कमा के दे। तो इतनी तो सब में सेंस होती है, बताइए किस में नहीं है, बताइए। सही सही, बहुत आज सुंदर तक बात जितने की। भी राजा हुए हैं, अगर वो उसमें कोई काबल होता तो सिविलाइजेशन किसी और रास्ते पे चली होती। वैसा नहीं होता सब कुछ। तो हमारा एक प्रश्न था, अक्सर हम सोचा करते थे हम किसी भी जो अकल और हिकमत कुव्वत ताकत से भरा हुआ शख्स होगा उससे हम पूछेंगे, तो वो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हमें अच्छे तरीके से दे पाएगा। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं आरपी जी, अगर आपका कुत्ता अपने गॉड की पिक्चर बनाए तो वो कैसी पिक्चर बनाएगा? अगर आपका संडा अपने गॉड की पिक्चर बनाए तो वो कैसी बनाएगा? अगर आपके वो कुत्ते बिल्ले को हुकूमत दी जाए तो वो कैसी सरकार बनाएंगे? वो इस पे अपनी ज्ञान देखिए, दीजिए। कुत्ता जिसकी पहले वो एग्जांपल, लेट्स टेक योर फर्स्ट एग्जांपल। कुत्ता फोटो अगर बनाएगा या खुदा की बनाएगा, गॉड की बनाएगा, भगवान की बनाएगा, तो वो जो अपने आप को देख रहा है वही बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा। अपनी छवि बनाएगा, जैसे यस अभी मजहब के कारोबार करने वालों ने ऐसी ऐसी चीजें बना डाली। यस हम यस आपको यस। हर रोज व्हाट्सएप पे एक चैप्टर भेजेंगे जॉर्ज ओवरवेल का, ये एनिमल फार्म का, तो इसको जरूर सुनिए, फिर इस पे हम आपसे ज्ञान हासिल करेंगे। क्योंकि देखिए बातें तो वही हैं जो हम सुनते रहते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात हर जो इंडिविजुअल है, हर जो फर्द है वो एक कहानी बयान करता है। तो उसको सुनने से उसने जैसे उस चीज़ को पाया, शायद हम सीखें कुछ आपसे। जैसे कॉमरेड थे, इन्होंने किसी स्ट्रीम पे इस बुक का ज़िक्र भी किया था। हाँ, वो कॉमरेड वो साहब जो आज नहीं आए आपके यार, वाले, वो तो। वो जो हाँ, वो बड़े यार, वो बहुत ही सेंसिबल बंदे हैं, वो आज आए नहीं कॉमरेड साहब। आप देखिए जिस याद आया, इंसान की आप इस ज़िंदगी बात की में वजह दुःख से। दर्द होता है वो वाक़या ही सेंसिबल होता है। भाई आप लोग तो लकी हैं इंडियन। आपका बहुत जल्दी आपका जो राजा है वो पद्मावती के साथ आ रहा है, तो आप अरे लोग यार तो स्विमिंग पूल में भी नहाएंगे, सब कुछ करेंगे। हम लोग गए जो अमेरिका में आप बसे हैं इधर उधर,
इंडिया में तो मजा हो गया, इतना बड़ी हस्ती वहां पे हैदराबाद में बैठी है। तो शान जी, आपको तो 90 दिन के लिए हिंदुस्तान में ऑन एंट्री तो वीजा मिल जाता है ना अमेरिकनों को और जी यूरोपियन। तो आपके जी, लिए तो मसला ही नहीं, आप भी जाएं उसके स्विमिंग पूल में। नहीं मुझे शौक नहीं है ना वो अच्छा। हाँ। और अगर वो जाएंगे, हम में से कोई वहां पे होगा फिर वो जाएंगे ना, अदरवाइज उन्होंने इंडिया जाके क्या करना। शान गिल जी, आप यहाँ ऐसा करें कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचें और इधर मदूद के पास आए, आपको देवता बना देंगे। नहीं, यहाँ आपको पर क्या भिखारी करना बना देगा, ये गलती मत कीजिएगा। हाँ, आप इधर आ जाए ना, ज्यादा बेहतर। आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी यहाँ पे। पहले वो हैदराबाद इंडिया को तो बना देना, फिर हम देखेंगे। कोशिश करें ना, आप पहले कोशिश करें। वुडमैन साहब तो आ रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ जी, वुडमैन साहब का तो उससे कमिटमेंट है ना। हाँ, मैं वुडमैन ये साहब से ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, दोबारा मदूद साहब से शादी ना करें। लेकिन वुडमैन बेचारे तो उससे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि कोई काम करो, कोई काम काज करो, इधर से ये भीख मांगना बंद करो। ये तो हर टीम में से एडवाइस करते हैं, ये बेचारे तो देखिए, सिर्फ ये कहते हैं। शान जी ने याद रखी बात। हम हाँ जब भी जाते हैं उससे यही कहते हैं, लेकिन वो हाँ मानता ही नहीं, वक्त जाया करता है। हाँ, नहीं आप अक्सर मतलब अक्सर आप उसे यही एडवाइस करते हैं कि काम काज कुछ करो, ये छोड़ दो ये सारे धंधे। लेकिन लेकिन वो उसने कभी किया ही नहीं काम, तो क्या करेगा आप। अब वो एक ये बड़ी आरपी चिड़िया। जैसे लोगों ने उसको खराब कर रखा है। आरपी हम्म जैसे लोग उसको पैसे देते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसके कंफर्ट जोन बनाते हैं, और वो इसी तरह फिर काम नहीं करता। पैदाशी बेकारी कोई नहीं होता वुडमैन साहब, ये लोग बेकारी बना देते हैं उसे। अरे, हम तो आपकी बात से 1000 मर्तबा इत्तेफाक करते हैं। हमने तो पहले ही ये फरमाया कि पैदाइशी इंसान अच्छा पैदा होता है। ये जो हमने एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, इन पत्थरों से हमको दीवारें नहीं बनानी, बल्कि इन पत्थरों से हमको रास्ते बनाने। तो जो पत्थर जमाने के पड़ते हैं इंसानों को, वो इंसान को राजा और भिखारी बनाते हैं। अभी देखिए, महाराज हैं ये आरपी जी, और ये अक्सर उसकी मदद फरमाते हैं, और देखिए उसको तालीम नहीं देते कि भाई देखिए कुछ ख्याल कीजिए, कोई काम कीजिए, किसी दुकान पे बैठे कुछ मैं जानवरों को तालीम देने के लिए नहीं हूँ। चले, हम आपको पहला चैप्टर भेजते हैं, अभी वो सुन के सोइएगा 30 मिनट, कल फिर भेजेंगे, ठीक हाँ है? भेजी तो भेजी। ज्यादा नहीं, कुछ 40 के करीब चैप्टर हैं, समरी नहीं हम भेजेंगे, हम फुल बुक भेजेंगे आपको। हाँ भेजी भेजी भेजी। हाँ जी गिल साहब ते अमर भाईजान करो गल। हाँ जी, जी गिल साहब, करो करो गल, मैं ना थोड़ा जा नाश्ता बस करने ना। खिसक जाओ सारे वारी वारी। नाश्ता भी कीती रखो, गल भी कीती रखो। नाश्ता सारा काम इकट्ठा कीती रखो ना। और ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। हाँ हाँ, ये कीती रखो। वुडमैन साहब तो मेरा ख्याल चले गए हैं। आहो फवाद, रेलत फरमा गए ने। हाँ फवाद भी चले गया वा। आप दिन में बैठे हैं, गपशप मारते हैं आप होर। ਇਹ ਵੁੱਡਮੈਨ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ। हम्म हाँ हाँ, इंतकाल फरमा गए वुडमैन साहब। ਉਹ ਗਟਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ दूध जिलेट ਦਾ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣ ਗਏ।
ਗੁੱਡਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨਿਪਨ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮਦੂਦ ਕੋ? ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਅਸਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਦੂਦ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਡਮੈਨ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਂਗਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਦੂਦ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜੋ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਿਦੂਦ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ 11 ਕੁ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿਦੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਹੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਜੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੰਨ ਬਾਪ ਹੈ। ਮਦੂਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹੀ ਉਹ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 20 ਜਾਂ 25 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੀਵਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਰਸੂਲ ਬਣਿਆ, 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਚ। ਹੁਣ 11 ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, 11-12 ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਛਿੱਤਰ ਭੇਲਿਆ ਚਮੜੇ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 99 ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 100 ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, 99 ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ 1-2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਝੱਟ ਸ਼ੁਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਇਹਦਾ ਬਸ ਕਾਲਾ ਗੂਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਤਾ, ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਯਾਰ 10-12 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ 11-12 ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ 11-12 ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਡਰਾਮਾ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਭੈਣ ਚ ਬਕਵਾਸ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਰਿਸ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 30-35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੀ ਉੱਥੇ 1000, 100, 200 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਾਓ ਤੇ 35 ਜਾਂ 30 ਜਾਂ 35 ਬੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਚ ਦੇਖ ਦੁਖ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਵਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਣਾ? ਮਦੂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਓਦਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੌਂਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਬਸ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਿਆ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਫਸਾਦ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਵੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਮੀਰ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਖੁਸਰਾ ਭੇਜੇ, ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਸੁਥਰਾ ਖੁਸਰਾ ਭੇਜੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖੁਸਰੇ ਠਕਾਈ ਕੀਤੀ, ਖੁਸਰਾ ਇਹਦੀ ਠਕਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਦੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਟਕਾਈ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਠਕਾਈ। ਅੱਛਾ ਓਏ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਟਕਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਵੇ। ਓਏ ਓਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। वैसे एक मैं तो आज गल दूंगा, इंतहाई जालिम इंसान है, बहुत ही क्रूड नहीं जरा इंसान है, जालिम। ਹਾਂ 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 ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲਬ ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੱਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਸਹਿਮੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਮੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਹਿਮੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੜ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ, ਬੜੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਕਿਆ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ। ਮੁਸਤਕਬਲ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਅਟਿਆ ਟੂਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। वोट बहन जी आ गए जी। अरे निपुण जी, हम गए थे इनको ऑडियो और पीडीएफ फाइल भेजने, तो हम वाकया ही आते हैं जाते हैं, काम होते हैं करते हैं, तो ये एक हकीकत है, हम ज़्यादा नहीं ठहरते और बहुत सी बातें सुन भी नहीं पाते। ये वाकई बात आपकी दुरुस्त है गुंचाए फरोजा में जी। वो आरपी को भेजनी थी ना किताब, तो उनको वो बुक भेजी हमने छोटी सी। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया किया। वो सुनेंगे, उस पर अपना तज्जिया जारी करेंगे, गाली गलौज से बचेंगे, क्योंकि ये पढ़ते नहीं और ऐसी बस बुरी बातें सोचते रहते हैं, तो फिर कुछ मसरूफ रहेंगे तो गालियों से बचेंगे। आगे 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 आगे। अरे बोलिए गाली क्या का हुआ? गाली का कारण ना ना हमारे परवरिश है ना हमारी आदत है। गाली का कारण कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें इतना मजबूर कर देते हैं कि हमें भी उनके स्तर पर उतरना पड़ता है। अब क्या करें उस काले सूअर का, क्या करें कुछ जिहादियों का, हमें भी गाली देनी पड़ती है। नहीं तो हमें क्या कोई अच्छा लगता है गाली देना सही किसी बात है भाई। को? तो ये एक कारण है मैं वुडमैन जी। अब लड़ना है तो हथियार तो पूरे चाहिए ना लड़ने के, क्या करें बताइए अब। जी दीपक जी, आप कुछ कह रहे थे, आप भी मेरी बात में हाँ मिला रहे थे, कुछ आप भी बोलिए। हाँ सही बात है भाई, आपने सही बात बोली यार। कहते हैं ना कुछ होते हैं, एक होता है चंगू और दूसरा होता है मंगू। मैं मंगू हूँ। मंगू जी क्या बोलते हैं आप? और चंगू कौन है? हाँ वो चंगू है, वो अपने अपने हिसाब से कैटेगरी तय कर लो आप। वुडमैन जो है वो चंगू में आता है, मैं मंगू में आता हूँ। चंगू मंगू दो हमारे पास दोनों है, चंगू भी है मंगू भी है। अरे बाबा, आरपी को किधर रखोगे? चंगू और मंगू के बीच में।
वो भाई वो मैं किसी की कैटेगरी तय नहीं करता हूँ, वो अब आप अपने हिसाब से सोच समझ के देख लो। हमारे पास समझे चंगू भी है, मंगू भी है। हाँ, मैं चंगू में आता चंगू हूँ, मुझे इतना पता है। चंगू मंगू। अरे ये कोई नया लौंडा डाल दिया घोष। एक होता है चाचा चौधरी और दूसरा नहीं उसका नहीं, बॉडीगार्ड होता है साबू। ये जो ये जो ये जो है ना, एक मिनट, ये घोष साहब हैं, ये बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे। हर बार अच्छी सजेशन ही देते हैं। कल हम स्ट्रीम करेंगे जी, नो बैड हैबिट्स। कल की स्ट्रीम करेंगे हम, नो बैड हैबिट्स। हाँ बोलिए बोलिए सर प्लीज, जिसने बोलना बोलिए। हाँ, तो एक होता है वो चाचा चौधरी और एक होता है उसका वो साबू। तो इस कहानी में चाचा चौधरी मैं हूँ। अब जो चाचा चौधरी की कैटेगरी में आते हैं वो हाथ उठाओ, और साबू की कैटेगरी में आते हैं वो अब आप तक तय करो। मेरा स्टैंड बता देता हूँ मैं। याद रखना, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। और साबू को जब गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। ये दोनों बातें याद रखना आप। अरे दद्दू की तो समझ आई, ये चचा चौधरी कौन बना दिया। दद्दू तो हम समझ गए, जबकि हम आपको देखते। ये चाचू कौन बन गया अभी, वो है। किसी हिंदी पिक्चर का जिक्र कर रहे। और ना जी ना, कॉमिक की बात कर कॉमिक की बात कर रहे हैं। मैं इंसान कॉमिक की हीरो की। कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और सुनाइए वुडमैन भाई। वो बढ़िया बढ़िया, अपने अपने शाम बारे में सुनाइए कुछ। कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। और सुनाओ वुडमैन भाई, क्या हाल है फ्रांस में? अरे सब कुशल मंगल है, आजकल बारिश होती है हाँ, और बियर कम पी जाती है, हाँ, वाइन ज़्यादा पीते हैं। वाइन जो है वो इंसान के दिल को साफ रखती है। हाँ, अच्छे जी। लेकिन कभी बर्बन भी ट्राई कर लो, कभी स्कॉच ट्राई कर लो, कभी अच्छी विस्की पी लो। विस्की भी बड़ी अच्छी बढ़िया वाली होती है। अरे वो हम एक ही पीते हैं ब्रांड विस्की का, लेकिन ज़्यादा हम पीते हैं कोनियाक और ब्रांडी। वो हमको नज़ले ज़ुकाम से परहेज करा देती है। हाँ, हम तो दवाई समझ के पी जाते हैं। वाह। ना ना, अगर नजला जुकाम होता है तो आइसक्रीम खा लिया करो, उससे भी। हाँ, लेकिन वो दूसरा आपका इश्यू है वापस। अरे हम तो मनफी जो -30-34 टेम्परेचर जब आ जाता है तब भी आइसक्रीम तो हम बहुत खाते हैं। ये तो वाकई, और उसमें 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 बाल्साम डालकर और कोनियाक डालकर, तो हाँ वो हाँ, तो। और भी एक चीज ट्राई करना, ठंडी ठंडी आइसक्रीम में गरम गरम गुलाब जामुन डाल के भी खाना। अरे वो और यार, भी बढ़िया। ये तो हिंदुस्तानी सुगाते हैं, ये कहाँ से। वो जिंदगी में और भी लुत्फ देते हैं। और धंधा कैसा जा रहा है। बस अभी समर टाइम में तो धंधा फुल होता है ना, दिसंबर तक तो फुल रहेगा, 31 तक। फिर जनवरी फरवरी मार्च थोड़ा स्लो हो जाएगा। उसमें जनवरी फरवरी थोड़ा ज्यादा स्लो हो जाता है। अब जो धंधा है वो उरूज पे है, एकदम टाइट। आपका प्रोग्राम था ना जाने का उधर, पाकिस्तान में भी।
हाँ, पाकिस्तान में जाने का प्रोग्राम तो है, देखते क्या होता है। अभी ना जाइए, सुना है उधर पानी आ गया, बहुत पानी आया उधर। मैं कौन सा आज रात को निकलने वाला हूँ भाई। मोदी साहब से हेल्प मांग रहे हैं सब लोग। इंडिया वालों बचा लो, इंडिया वालों बचा लो। झूम के पहुंचू जन्नत तक में, 7 बोतल एक टिका देना। अच्छा, पंडित जी मेरे मन में टिका। कल का हमारा टॉपिक है जी, जैसे हमारे दोस्त घोष साहब ने सुजेस्ट किया था, नो बैड हैबिट्स। कल का टॉपिक वो है मतलब उसमें किस टॉपिक पे बात करनी है? कि बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए हम में। ओके, मतलब वो पर्टिकुलरली मतलब समझा नहीं बात को मैं। पर्टिकुलर बैड हैबिट्स ये है कि अगर नॉनसेंस टॉक हो वो बैड हैबिट है, और इररेलेवेंट बात कर रहे हैं जहाँ पर रेलेवेंट बात करनी चाहिए वो भी बैड हैबिट है। गालियां और देना बैड हैबिट्स है, दारू हाँ पीना बैड हैबिट्स है, अय्याशी करना हाँ बैड हैबिट है। हाँ, किसी के गांड में उंगली करो वो भी बैड हैबिट है। अब वो आगे उंगली वाले वोटमैन साहब, हाँ। उंगली वाले आगे। अब ये सारी बैड हैबिट्स वाली हमारे में तो है, तो फिर हम क्या करें? कल नहीं आए स्टीम पे? नहीं नहीं, आप आइए, हम डिस्कस करेंगे ना। जितने बैड हैबिट वाले वही तो चाहिए कल स्ट्रीम पे। ओके ओके। तो ये बैड हैबिट है क्या आपकी नज़र में? देखिए, आप जिसको बैड हैबिट बोलते हैं उसकी हुजूर डेफिनेशन फरमा दीजिए ताकि उसी पे बात की जाए। बैड हैबिट का उत्तर दे दीजिए हमको। बैड हैबिट ये है कि किसी के पिछवाड़े में उंगली देना, ये भी बैड हैबिट है, जैसे आपको है ये। आपने इंडिया छोड़ा, बैड हैबिट थोड़ा छोड़ी। तो बैड हैबिट बहुत सारी है, खुद सोच के आया ना, खुद बताओ कौन कौन सी बैड हैबिट्स होती है। सारी चीजें मैंने बताने का ठेका लिया हुआ आपको। मतलब अरे एक्चुअल में वुडमैन भाई क्या है ना, ये आपको और मुझे दोनों को हिट करने की इनकी प्लानिंग है। जैसे ड्रिंक हम करते हैं, वो अय्याशी नहीं हम नहीं, करते हैं, मेरी कोई उंगलियां हम प्लानिंग करते नहीं हैं, है। गालियां हम दोनों देते हैं। अरे मेरी समझे कोई नहीं, कि नहीं? गाली प्लानिंग तो हमने कभी नहीं दी। हाँ, ये नहीं नहीं, ये यहूदियों की चाल है, ये हमारे लिए, तो ये यहूदियों की साजिश है। नहीं नहीं, ये हमारे दोस्त है, उन्होंने सुजेस्ट किया ओ, था, हमने रख दिया मुझे टॉपिक। पता है भाई, मैं ऐसे ही खींच रहा हूँ यार। हाँ, जैसे ये भी बैड हैबिट है खींचना। ये यहूदियों की साजिश है हमारे खिलाफ। ये जिस्मानी गंदी आदतों की बात कर रहे हैं या हाँ, जैसे जैसे मुष्टजनी इंटेलेक्चुअल करना। गंदी आदतों की? हम नहीं समझ पाए। देखिए अर्जुन जी, आपने अपना जिगर खराब कर लिया, गुर्दे खराब कर लिए। ये जिस्मानी गंदी आदतों की वजह से ये हम समझ नहीं पाए इसको। थोड़ा हाँ, ये रोशन। अपना लिवर खराब करना, अपनी किडनीज खराब करना, ये भी बैड हैबिट में आता है। देखिए, जब आपने हिंदी खाने को हिंदुस्तानी खाने को ही अच्छा समझना है, ऐसे देश में आकर जहाँ की आबो हवा उस खाने को उस तरह नहीं बना रही जिस तरह आप हिंदुस्तान में रहकर उस खाने का मजा चखते हैं, तो कहने का मैं और कोई खाना खा नहीं सकता ना, मैं क्या करूं बताइए। तो पानी पिया कीजिए।
तो मैं आपको कहता था ना दीपक भाई, ये बहुत छेड़ा-छाड़ी करते हैं, ये हटते नहीं है। एक्चुअल में क्या ना, ये पानी पीते हैं ना, लेकिन वो पानी नहीं पी सकते जो हम पीते हैं। हाँ, ये दीपक तो भाई मैं ना बराबर बोले। आपका एक एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूँगा। इनकी ये आदत हटा दीजिए गाँड में उँगली देने की वो बस। नहीं हट सकती, ये पैदाइशी आदत है इनकी। पैदाइशी आदत है। तो ये आदतें जैसे अभी बीड़ी पीना भी एक आदत है, आपकी जो कभी बार में जाएँ तो हुक्का भी पी लेते हैं, इसको भी बैड हैबिट बोलते हैं आप? मैंने कभी नहीं पिया हुक्का-शुक्का, बीड़ी-शीड़ी, ये तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ, पर ये है कि मैंने 8 से 10 साल पहले दारू बहुत पी थी, और 8-10 साल से मैं बियर बहुत पी रहा था। तो ये आपकी वो जो है हाँ, बोलिए वुडमैन साहब। तो यार बियर से तो वो पेट जो है ना वो बाहर निकल जाता है, जैसे औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो बियर तो खतरनाक है ना सेहत के लिए, तो कुछ और पिया मैं बियर कीजिए जिससे वो ये जब से लॉकडाउन हुआ था ना, कर्फ्यू भी लगा था, तब से तो जैसे कहते हैं लिमिट ही कोई नहीं थी। वेले थे, काम कोई था नहीं। अच्छा, आपका तो वो बैंक भी है ना, तो बैंक भी बाँधते? आप ना मेरी गांड में उंगली मत दीजिए। बैंक खोलते सर, मैं आपकी गांड में बम्बू दूंगा पूरा। पेपर वेट होता है ना, पेपर वेट। वो गोल गोल वाला, वो दूंगा। तो क्या बड़ी अभी जल्दी। अभी कारोबार खुल गए आपके उधर? कोविड थी ना, तो अभी तो हाँ हाँ, खुल गया। ब्रायन आपको नहीं हुजूर सुना, कुछ फरमाइए इससे पहले कि हम इंतकाल फरमा जाएँ। अरे नहीं नहीं, मैं आप कुछ कलाम पेश कर रहे थे इसलिए मैं भी सुन रहा था। अरे हम इन्होंने भी करते कलाम हैं। थोड़ा ना पेश करना, उन्होंने गांड में उंगली देनी होती है। इनका कौन सा कोई कलाम है? ये इन्होंने इंडिया छोड़ा, कुत्ते काम थोड़ा छोड़े। अरे वो हमने आपको वो किताब भेजी ना एनिमल फार्म, तो हुजूर हाँ, उसको ज़रूर सुनिएगा, फिर बातचीत करेंगे ठीक और फिर आपसे कलाम सुनेंगे कि आप कैसा कलाम करते हैं अपनी है। तो वुडमैन अपनी साहब, बन ब्रांडी पिया आपने? जी फरमाइए हुजूर, क्या बोले? ब्रांडी, आज ब्रांडी पिया आपने? अरे वो ऐसा है कि आजकल तो हम नहीं पी रहे। अम, वो तो ज़्यादा हम सर्दी में पीते हैं ना। आज सही है। टेम्परेचर गिर गया, हम्म तो आज तो थी गाड़ी में हीटर वगैरह लगाए थे, सर्दी है आज इधर। हम्म। तो जब ज़्यादा सर्दी होती है तो फिर तो हाँ, पीते हैं, लेकिन आजकल बस बियर पे ही गुज़ारा करते हैं। बियर नहीं है, बियर अच्छा नहीं लगता इतना। ब्रांडी में दम है। हाँ, वो भी अच्छी है, लेकिन सर्दी में अच्छी रहती है सेहत के लिए। नहीं, अभी तो ठंडा माहौल हो ही गया है यहाँ पे भी। थोड़ा हो ही गया है ठंडा माहौल, कोल्ड वेदर हो गया है यहाँ पे अभी। तो हुँ। अभी चलता है, अभी पिया भी तो कोई टेंशन नहीं है। बट वो एनी टाइम सही भी है मेरे हिसाब से, अगर उसको आप हफ्ते में एक बार लेते हो तो। सही। लगता है आरपी जी इंतकाल फरमा गए। हाँ, अरे वुडमैन साहब, मैंने आपको वो जो है ना मौदूद, उसके शो पर देखा। आप उस दिन गए, आपने एक शब्द भी नहीं बोला, क्या हो गया था? अरे वो कुछ ऐसी है कि कुछ बाज़-औक़ात लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम बोले अभी, हम्म हम हम्म ऑनलाइन गए, किसी ने फ़ोन कर डाला, हम हम्म फ़ोन पे लग गए, हम भूल गए। हाँ, तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि किसी और स्ट्रीम को भी हम सुन रहे हम्म
हिंदी भाषा में या किसी और भाषा में, फिर हम हाँ सर। वक्त नहीं दे पाते ना, तो जैसे हम सही है अक्सर सर। कहते हैं कि अरे हाँ दिन हाँ। में तो 24 घंटे ही होते हैं, 8 घंटे सोना भी है, 8 घंटे काम भी करना है आपने, फिर 8 घंटे बचते हैं, तो उसमें आप कितना वक्त दे सकते हैं। अभी सही है हम इस सही। स्ट्रीम में आते हैं या हजूर की स्ट्रीम में जाया करते थे, या गालब भारत, वो तो एक पुरानी बात हो गई। तो बिल्कुल। अभी तो बस ये आरपी है, तो आरपी को ही सुनते हैं। इसी बात है, मतलब सही कहा आपने। वैसे 8 घंटे में क्या क्या कर लोगे? 8 घंटे में सब काम तो नहीं कर सकते ना। सही बात नहीं है। कर सकते, नहीं कर सकते। वही बात होता है। और काम में घर पे हो तो फिर भी सही होता है। अभी तो क्या है, अभी ऑफिस वगैरह चालू है, उसके बाद तो कुछ जमता ही नहीं है यार, ज्यादा जुड़ना वगैरह। जी बराबर बोले। अभी तक मैं घर से ही काम कर रहा था, इसलिए सब कुछ सही था। अब नहीं रहा घर से काम। कल मैं आपको देखा, मैं बोला चलो आपसे बात करते, लेकिन आप निकल चुके थे तब तक। सिंह साहब कुछ बोलिए। चर्बी के ड्रम के चर्बी सिंह साहब गए। निपुण भाई कुछ बोलिए। अरे निपुण भाई, फाद भाई, चलो भाई लाइव खत्म कर दो। हाँ जी बोलो जी। मैं बोला लाइव खत्म कर दो। अच्छा, आज आरबी जी हाँ खाना कोई तो नहीं कोई है। नहीं। वैसे भी कोई नहीं, अभी लाइव बंद कर दो। और कैसे चल रहा है और निपुण भाई? बस बढ़िया, आप फोन कर रहे थे तो मैं मीटिंग में था। क्या चर्बी का ड्रम गुल्लू था, वो गाली दे रहा था आज। क्या हाँ करता? वो आज गुल्लू दादा गया था ना उसके वहाँ, हम्म, देखी तो नहीं मैंने तो कोई उसकी। फेक आईडी होगा। नहीं ऊपर भी तो कोई अरे बैठा हुआ नहीं, था वो ना। असली था। उसने लिखा था कि तुम्हारे आपके पिताजी जी जिंदा है मर गए, तो गाली दे रहा था वो। देखा मैंने वो सीन। ऊपर ही गाली दे रहा था। हम्म। कह रहा था कि ये नकली भी हो सकता है आईडी, मेरे दोस्तों के नाम की नकली आईडी बना के लोग आ जाते हैं, ये भी कह रहा था। आवाज नहीं, असली बाद में थी उसने नकली गाली थी। दी है। अच्छा, आवाज क्योंकि लिख रहा मैंने था, पूरी तो लेकिन देखी नहीं। कमेंट क्या में कहता है लिख रहा बाद में? था। नहीं वो बाद में उसने गुल्लू को ये कर दिया, डिसोन कर दिया। क्या कहता? बोलता है चंद्रशेखर फक यू, डोंट फक अराउंड विद मी, मुझे सब कुछ पता है, आप सब मिले हुए हो, दिस एंड दैट ना। कुछ पुलिस हम्म। वगैरह में नहीं है, कुछ कुछ बातें कर रहा था वहाँ पे। हम्म। तो ये तो पता बात है। लग गया। हाँ पता चल गया उसको, पता चल चुका। अब पता हम्म। चल गया उसको। वो एडब्ल्यू भी है ना, ये फुद्दू में। आओ वहां से बजा के जाओ, आओ वहां से बजा के जाओ। हाँ वो हाँ भी हाँ। है क्या? वो उसके साथ बैठा रहता है, वही पूरा भड़काता है उसको। ये कोई नहीं नहीं, है उसी वो मार ये दो नहीं। देते हैं हम। हाँ वो एडब्ल्यू को भी लेना पड़ेगा, उसको भी आ गया दिन, उसका भी डाटा टाइम आ निकाल गया। लेते हैं। उसका डेटा, उसका फोन नंबर निकालना है। सबसे पहले उसको ही फोन अरे इसका जाएगा नंबर अभी। तो है। नहीं वो नहीं है उसका अपने नंबर पास में तो यार नंबर। जो उसने लिस्ट दिखाई थी शाम में, उसमें था तो सही नंबर। चेक करो एक बार अच्छे से, मुझे नहीं लगता। उसका नंबर है AWB का। चेक करो ना एक बार, होगा तो। बाद भाई लग आप रहा है चेक करो। नंबर, नंबर एडिट करके इसका डालना पड़ेगा फिर, हम्म। उसके पास आएंगे फिर कॉल। और बाद वो जो आपको मेल सेंड किया था खयाम ने उस दिन, उसमें तो नंबर था ना उसका, आप बोल रहे थे। या वो देखनी पड़ेगी वो स्क्रीनशॉट ना। एक मिनट हाँ देखते हैं, मेरे पास है पड़ा, रुको रुको, अभी दिखाता हूँ। देखो इसमें है कि नहीं, रुको 1 मिनट दो, ढूंढ रहा हूँ मैं। इसमें होगा। निकालो फिर नंबर ये क्या उसका। चेक करना पड़ेगा, पता नहीं मिल जाएगा इसमें। क्या हमने शेयर की थी ना ये लिस्ट। हम्म। हाँ तो वो जो लिस्ट उसने शेयर की थी, मैं उसी के पूछ रहा हूँ। हाँ, इसमें ढूंढ लेंगे।
चलो अब स्ट्रीम बंद करते हैं, 2 मिनट बाद बैक स्ट्रीम बात करते हैं। स्ट्रीम बंद कर दो अगर करना है तो। अच्छा भाइयों, जुड़ने के लिए थैंक यू। आपसे कल हाँ, मिलेंगे, बैड हैबिट्स के ऊपर बात करेंगे कल की स्ट्रीम में। हाँ, सब्सक्राइब ठीक है, इतना करें, ही। लाइक करें और लाइक ठोकें सब। हाँ, लाइक जरूर रखें, शेयर भी करें लाइक और जरूर सब्सक्राइब भी ठोकें, करें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलो मिलते हैं कल जी। कल मिलते हैं, देखने वालों का शुक्रिया।